बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2.9 एक्सरसाइज का सॉल्व किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। शो दैट y इज इक्वल टू log x ओवर x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। तो क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू log ऑफ x ओवर x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना होता है और फिर सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हुए। नीचे वाले का स्क्वायर एज सच और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। x x कैंसिल and it is 1 minus log x over x square first derivative. Now second derivative. Quotient rule again. X square whole square. X square denominator as a derivative of numerator. There 1 का derivative 0 minus log का derivative 1 over x minus 1 minus log x denominator as such numerator and derivative of denominator. And then x cancelled by x, that is minus x minus 2x plus 2x log of x over x power 4, that is minus 3x plus 2x log of x over x power 4. Second derivative is this, and we check that it has maximum value at x equal to e. तो अब हम क्या करते हैं, इसमें x is equal to e सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो when x equal to e, then 3 minus 3e plus 2e log of e over e power 4 minus 3e plus 2e log of e 1 and e power 4, that is minus e over e power 4, that is minus 1 over e cube, and it is less than 0, implies y equal to log of x over x has maximum value at x is equal to e, hence it is proved. And next question number 5, similar. Question number 5, y equal to x power x has minimum value at x equal to 1 over e. तो पहले हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें लॉग अप्लाई करना होगा क्योंकि बेस एंड एक्सपोनेंट्स आर वेरिएबल। तो log x power x, then log of y equal to x log of x log of m power n equal to n log of m. Third law of log, and then derivative 1 over y dy over d of x, x is derivative 1 log x and plus x log derivative 1 over x, and it becomes log x plus 1 x cancel 1 over y dy over d of x, and dy over dx is equal to y into 1 plus log of x, and then y की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे हम, तो ये है x पावर x into 1 plus log of x, that means the derivative of x power x is x power x into 1 plus log of x. Again differentiate d square y over dx square, the derivative of this whole is derivative of this, ये complete x की x का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आएगा x power x into 1 plus log x, इसका डेरिवेटिव आया into 1 plus log x, ये वाली रकम, और then plus x power x into derivative of this 0 plus 1 over x, and this becomes d square y over dx square x power x into 1 plus log x square plus x power x minus 1, क्योंकि इधर x की पावर 1 है, ऊपर x है, और इसमें अब वैल्यू अप्लाई कर देते हैं हम, x is equal to 1 over e, तो 1 over e power 1 over e into 1 plus log of 1 over e whole square plus 1 over e power 1 over e minus 1. All terms are positive, so its answer is greater than
0 at x equal to 1 over e greater than 0 implies it is minimum, hence it is proved, that is required. तो नेक्स्ट ये एग्जांपल भी है इसकी एक्सरसाइज 2.9 पेज नंबर 112, एग्जांपल 2 पेज 112 पेज पे एग्जांपल नंबर 2, गिव एग्जामिन द फंक्शन डिफाइंड एज f of x is equal to 1 plus x cube for extreme values. f of x equal to 1 plus x cube for extreme values. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बिलो 2.9 एक्सरसाइज, उससे रेलेवेंट ये एग्जांपल है कि हमने इसमें भी इसी एक्सट्रीम वैल्यू दैट मीन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए वही प्रोसेस है हमारा कि फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जाएगा, दैट इज 0 plus 3x square, then first derivative equal to 0, that is 3x square 0, that is x equal to 0, and then second derivative, that is 6x, and that is second derivative at 0, that is 0, and implies 0 implies second derivative test fails. ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे फेल हो रहा है, दैट मीन कि ये हमें कोई आंसर नहीं देगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हमने स्टडी किया है, अगर पॉजिटिव होगा तो देन ये मिनिमम फंक्शन होगा, अगर नेगेटिव तो मैक्सिमम। जब ये जीरो है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वाली सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हो सकता कि ये फंक्शन नाइदर मिनिमम और नॉर मैक्सिमम है। तो इसके लिए हमें फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब फेल हो जाता है तो देन हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मीन x की वैल्यू 0 है, तो x अगर हम लेस देन 0 लेंगे तो देन हम देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। अगर हम x लेस देन 0 मीन नेगेटिव, लेस देन 0 मीन नेगेटिव, तो जब हम नेगेटिव यहां यूज करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर लेने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। और फॉर दिस इफ x ग्रेटर देन 0, अगर हम x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव लेते हैं तो देन आल्सो अगेन दी सिचुएशन यही आ रही है, f प्राइम दैट इज पॉजिटिव, मीन कि उस पॉइंट से पहले और उस पॉइंट के बाद दोनों सूरतों में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डेरिवेटिव पॉजिटिव मीन कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट मीन implies that at x equal to 0 f of x is neither maximum nor minimum, कि ना तो इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। क्योंकि जरा और कर लें अगर हम इस बात पे थोड़ा सा, सपोज दैट किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही उससे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो ये सिचुएशन है, और ये पॉइंट है वो सपोज कर लेते हैं, और उसके बाद वो इंक्रीज हो रही है, तो इट मीन दैट इज मिनिमम वैल्यू, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। सपोज दैट इसी सिचुएशन के मुताबिक दूसरी तरफ लेते हैं हम कि ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है एक पॉइंट से पहले, ये पॉइंट है सपोज है, और उसके बाद ये डिक्रीज हो जाता है, तो इट मीन इस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये मैक्सिमम, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव देन इट इज मिनिमम, एंड इफ फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव देन इट इज मैक्सिमम। और अगर सिचुएशन सेम, नेगेटिव पहले भी नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव या पॉजिटिव बाद में भी पॉजिटिव, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम सिचुएशन है जो कि इस एग्जांपल में क्रिएट हो रही है हमारे पास। इसी तरह अगर हम देखना चाहें तो 2.9 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी सेम है, जस्ट इसमें 1 + x³ है, उसमें 1 - x³ है, बाकी सारी सूरत हाल उसकी इस तरह की ही है।
तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.10 स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो नेक्स्ट 2.10 एक्सरसाइज, तो चार सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि डिवाइड 20 into 2 parts so that sum of their squares will be minimum. Divide 20 into 2 parts. Let x and y be 2 parts. Then x plus y equal to 20 first equation, and as for sum of squares, that is x square plus y square from 1 y equal to 20 minus x, and implies s equal to x square plus 20 minus x square, that is x square plus 400 plus x square minus 40x, and that is 2x square minus 40x plus 400. And now सेम वही सिचुएशन के सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम है, तो इट मीन मैक्सिमम मिनिमम वाली सिचुएशन होगी हमारे पास। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले लेंगे हम इसका, दैट इज 4x minus 40 into 1 plus 0, 4x minus 40. Now first derivative is equal to 0, implies that 4x minus 40 0 implies x is equal to 10. Now second derivative d square x over dx square, that is 4 into 1 minus 0, that is 4, and then second derivative at x equal to 10, that is 4 and greater than 0. Second derivative implies that s is minimum and y equal to 20 minus x, that is 20 minus 10, and y is equal to also 10. Then 10 and 10 are two parts of 20 whose sum of squares will be minimum.